Good morning, dear students. I hope you all are very fine today. So let us start with our new lesson with a very fresh mood, that is the light, shadows and reflections. Let us see to this presentation very properly. Can you see a torch which is which is lighted from one side, and the title of our lesson, that is making a shadow, right? That is making a reflection of the light, right? So let us see and let us learn all about it. It is very interesting. Okay, so let us start. So with an introduction, you see various objects around you. Now also you are sitting, you are looking at various things nearby you. So how are we able to see the things? Okay, for you to get this answer, let me give a hint. If in the night there is no light, or in the dark, can you see the things clearly? No, we cannot see the things clearly if there is no light. But if there is a light all over, can you see the things? Yes. So what makes us possible to see the light? To see the things, that is the light. So लाइट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट. तो अगर हमको कोई भी ऑब्जेक्ट देखनी है, इफ़ यू वांट टू सी एनीथिंग, लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डार्कनेस में आप कुछ भी नहीं देख सकते, राइट? So from where do we get the light? Simple. The very main source, the very important source of light is the sun. Sun gives us a huge amount of light, right? So these objects, such objects which gives us light, are called as the luminous object. The object which emit light, which gives out light, are called as the luminous object. Moon is not a luminous object क्योंकि उसको खुद का light नहीं होता है. Okay, it just reflects the light from sun. You might have learned this. So but sun is the ultimate source of light to us, and the objects like sun, torch, जो भी है, which emits the light, are called as the luminous object. Okay, एंड ये जो लाइट है, सन की जो लाइट है या ट्यूबलाइट की जो लाइट है, विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू आवर आइज, एंड हेंस वी सी द ऑब्जेक्ट. हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट? जो लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, एंड फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट दैट लाइट गोज इनटू, दैट गेट रिफ्लेक्टेड एंड इट गोज इनटू आवर आइज, एंड हेंस वी कैन सी द ऑब्जेक्ट. Okay, so I hope you have understood how are we able to see any object. क्योंकि डार्क में तो it is not possible, no light is falling on that object, तो हमारी आइज में वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, एंड हेंस वी आर नॉट एबल टू सी द लाइट इन दैट केस. ओके, एंड यू हैव लर्नड द टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? लाइक द ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ओपेक ऑब्जेक्ट यू कैन सी इट थ्रू द डायग्राम. ये जो जिराफ का डायग्राम आपको बताया गया है, through the opaque object the giraffe is not seen. So what is opaque object? Through which the object cannot be seen at all. Okay, उसके बाद आपने, if you see in the diagram, you see the translucent light, translucent object through which a partial amount of light can pass, and hence we can see the giraffe a little partially. We can see that, not clearly, but right. And through the transparent, the third mirror or third part, where you can clearly see that is a giraffe. So this is how are the objects divided. You know it very well. Okay, so let us perform an activity. What you need to do, you have to just look at yours, look around yourself, and of course you will see many objects, like you can see the scale, pen, the wall, notebook, a paper, and whatever you are getting, or the tracing paper, or a mirror, or whatever you are getting, or a glass. So what you need to do, you just have to take all these objects, and you just try to see through that. Okay, try to see through that. Is the light from that far object able to travel into your eyes through any of the object? Like if you are able to see the wall, okay, if the wall is there in front of you and you hold a scale, or suppose you hold a pen or a notebook, you can hold. Okay, hold a notebook, then can you see the wall which is on the far side through that notebook? No, you cannot see, because it is very simple. If the light is falling on that wall which is in front of you, and it is directly going in your eyes, and if you have kept the notebook in between,
will the light ray go into your eyes? No, notebook is an obstacle in between, right? The notebook is not allowing the light to come and pass into your eyes, so you cannot able to see that wall which is far away, right? Or a tree or whatever which is far away from you. तो opaque object क्या करता है, लाइट को उसके थ्रू पास नहीं होने देता, एंड हेंस यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट विच इज ऑन दैट साइड, विच इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट opaque object, right? So okay, now see what is exactly a shadow. You all must have seen the shadow. सबने shadow देखी है, right? shadow कैसे आती है, how are the shadows exactly form and what are exactly the shadows? तो हमने सीखा है कि जो लाइट होता है वो लाइट opaque object के थ्रू क्या होता है, पास होता है, right? the light passes through the opaque object, लेकिन the light कैन नॉट पास थ्रू दी opaque ऑब्जेक्ट. तो मैंने यहाँ पे लाइट का एक सोर्स रखा है, हियर इज द टॉर्च एंड हियर समथिंग आई हेड, सपोज अ नोटबुक. तो उसके ये साइड लाइट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि दैट इज opaque ऑब्जेक्ट. नोटबुक इज एन, और इवन इफ आई कीप माई हैंड एंड आई होल्ड अ टॉर्च ओवर हियर, तो वो साइड पे क्योंकि मेरा हैंड इज opaque, सो द लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैट. इफ़ द लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैट, तो ये साइड में लाइट नहीं जा रहा है, तो क्या आ गई, शेडो आ गई, राइट? दैट इज द शेडो. एंड उसके आजू बाजू से लाइट इज एबल टू पास, सो लाइट विल पास. और इतने एरिया में मेरा जो पाम है उस एरिया में से लाइट पास नहीं हो रहा है, सो दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द लाइट टू पास एंड हेंस द लाइट विल नॉट गो एंड हेंस दैट विल फॉर्म अ शेडो. लाइट पास नहीं हो रहा है मतलब क्या, दैट विल बी डार्क. That is nothing but we call as the shadow. You can see it in the diagram. चेयर है, चेयर के ये साइड अगर लाइट आ रही है, सनलाइट और टॉर्च whatever, you can see the shadow on the opposite side. shadow कहाँ पे आती है, keep in mind shadow is always on the opposite side. If you are holding a torch in this like in the right side, shadow will always be formed on the left side. if you see, जब आप चल रहे हो in the morning or in the evening, सन अगर आपके पीछे है तो आपके आगे आपकी शैडो आएगी, राइट? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस. आपको क्या करना है, लेट अस प्ले अ गेम. व्हाट यू नीड टू डू, एक कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, ठीक है? ओके, सो जस्ट कीप एन ऑब्जेक्ट. इफ़ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट एंड यू होल्ड अ टॉर्च लाइक अ सोर्स ऑफ लाइट, और उसके ये साइड जो है एक पेपर रखो, पेपर पे शैडो आएगी. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखी है, यहाँ पे टॉर्च है और ये साइड आपने पेपर पकड़ा है, तो पेपर पे शैडो आएगी, राइट? सो द शैडो विल बी फॉर्म ऑन दैट पेपर. और अपने फ्रेंड को टेल योर फ्रेंड टू ड्रॉ एन आउटलाइन. वो जो शैडो है, यू टेल योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ दैट शैडो. और फिर दूसरी फ्रेंड को टेल हिम टू रिकॉग्नाइज कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी है फ्रॉम द शैडो. इफ़ योर फ्रेंड इज एबल टू रिकॉग्नाइज द ऑब्जेक्ट और नॉट, you can play it at the home with your siblings also. It is very nice game. तो shadow, yes you can get, you can see it in the diagram. एक human being की है, एक है bird की, right? एक है notebook या कुछ rectangular, and one is of the plant or of the tree. So by the shadow also we can understand कि वो object क्या है, correct? By shadow we can understand what is that object, and you can also play with the shadow, right? So but what is important for shadow to be formed? Source of light. अगर लाइट है तो ही शैडो आएगी, लाइट नहीं है, रात में कहाँ से शैडो आती है, नहीं, बिकॉज देर इज़ नो लाइट, देर इज़ डार्कनेस ऑल ओवर. सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो, राइट? और शैडो के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, लाइट तो है, और कुछ? यस, लेट अस सी इट विद एन एक्टिविटी. क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको रात में करनी है, लाइक बिकॉज द डार्कनेस इज नीडेड. एंड वॉट यू नीड टू डू, टेल योर फ्रेंड यू आर होल्डिंग अ टॉर्च सपोज इन योर हैंड, और आपकी फ्रेंड को ऐसे खड़े होने को बोलना है इन द डार्कनेस. ओके, इफ़ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग इन द डार्क, यू नीड टू होल्ड द टॉर्च, और वो फ्रेंड जो डार्क में खड़ा है उसके वो जो टॉर्च है वो नीचे से ऐसे ऊपर, राइट? नीचे से ऐसे ऊपर उसकी फेस पे टॉर्च की लाइट ऐसी आनी चाहिए, और दैट टॉर्च जो है इट शुड बी फेस्ड अपवर्ड, ऊपर जानी चाहिए वो टॉर्च का लाइट. तो डू यू सी द शैडो? ऊपर तो क्या है, स्काई है. ये ओपन प्लेस में करना है, नॉट इन द रूम. तो ऑफकोर्स रूफ पे तो शैडो आएगी. यू टू डू इट इन द ओपन प्लेस एंड इन द डार्क. तो इफ़ यू आर होल्डिंग द लाइट लाइक दिस, टॉर्च लाइट लाइक दिस, और उसका
the light of torch is going upward, okay, through its face. तो आपको डू यू सी द शैडो? नो, यू विल नॉट सी द शैडो, ओके. या ट्री है, ट्री को ही कर लो ऊपर, तो ट्री का ऊपर शैडो जाएगा नहीं, क्यों? तो लेट अस डू अनदर थिंग. क्या करना है, आपने टॉर्च ऐसी पकड़ी थी ना, अभी सीधी पकड़ो. इफ़ योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग लाइक दिस, यू होल्ड द टॉर्च लाइक दिस, और दूसरे एक फ्रेंड को उसके पीछे एक कुछ भी कार्डबोर्ड या ऐसे कुछ लेके खड़े होने को बोल दो, जैसे विच इज शोन इन द डायग्राम, ओके. तो डू यू सी द शैडो नाउ? यस. वॉट इज नीडेड फॉर द शैडो? एक तो लाइट तो चाहिए, और उसके अलावा यू नीड अ स्क्रीन, राइट? You need a screen or an opaque object, something on which the shadow is formed. Shadow किस पे form होगी, उसके लिए भी you need a screen or a wall, right? So wall or paper or whatever that is acting as a screen. So you should have a screen for a shadow to be formed. So there are two things necessary for shadow. एक है light, और लाइट जिस पे फॉल हो रही है ओपेक ऑब्जेक्ट, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट की ही शैडो बनती है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की नहीं बनती, ट्रांसल्यूसेंट की थोड़ी सी शैडो बनती है. एंड ऑल्सो यू नीड अ स्क्रीन जिस पे शैडो बने, राइट? सो स्क्रीन इज ऑल्सो नीडेड अलॉन्ग विद लाइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. शैडो में ऑल्सो कन्फ्यूज यू, मैंने आपको बोला है कि जस्ट बाय द शैडो यू कैन गेट विच ऑब्जेक्ट इज दैट, बट there might be some things, okay. Before that we can see shadow can be seen on the screen that we have seen, and also you see where how the shadows, you can play with the shadows. ये fingers से और अपनी hand से we can make various shapes, right? We can make various shapes and you can make various kinds of animals. ये आपने देखा होगा या खेले भी होगे इसके साथ, right? So this is all about the shadow. It's a fun, right? And yes, we will do an activity, very interesting activity. क्या करना है, if you hold a card sheet, a cardboard, और एक नोटबुक लो, एक कार्डबोर्ड लो, एक नोटबुक लो, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लो, and try to form the shadow of these three things. Will there be any difference? No, it will be like this, it will be rectangular. तीनों की शैडो एक जैसी बड़ी, तो आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये शैडो किसकी है? नो. यू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर, फ्लावर जिसका शेप सेम है, कलर्स अलग है, उसकी शैडो फॉर्म करो. विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कलर्ड फ्लावर इज दैट? नो. फ्लावर है ये तो शायद समझ आए शैडो से, लेकिन कौन से कलर का फ्लावर है, शैडो का कलर चेंज होगा? नो, द शैडो विल ऑलवेज बी डार्क, राइट? तो ऑब्जेक्ट का कलर कौन सा भी हो, यू विल गेट सेम काइंड ऑफ द शैडो. और एक करना है, इफ़ यू टेक अ लॉन्ग बॉक्स, एक लॉन्ग ऐसे रेक्टेंगुलर लॉन्ग बॉक्स लेना है, एंड होल्ड इट इन वेरियस पोजिशन, होल्ड इट लाइक दिस, होल्ड इट लाइक दैट, होल्ड इट इन वेरियस पोजिशन एंड ट्राई टू गेट द शैडो. तो वो शैडो सेम होगी? नो, इट विल बी डिफरेंट. सो द शैडोज विल डिफर, राइट? इफ़ यू चेंज, इफ़ यू मूव द ऑब्जेक्ट, चेयर है, चेयर को वेरियस पोजिशन में मूव करो तो उसकी शैडो भी डिफरेंट होगी, right? You are standing, you move in various position and see the shadow, it will be different. So shadow will not give you the very clear idea of the object, and shadow may even confuse you, it may mislead you. आपको लगेगा ये शैडो तो कार्डबोर्ड की है या नोटबुक की है या पैड की है या फिर राइटिंग पैड की है या फिर एक बॉक्स की है. वी कैन नॉट गेट इट. और ये जो हमने देखा था इसमें भी यू कैन सी, इज देयर अ रियल बुल और इज देयर अ रियल वुल्फ और रैबिट? नो, यू आर मेकिंग दैट शैडोज. सो शैडो में कन्फ्यूज यू, राइट? सो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड, इन द नेक्स्ट लेक्चर. जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, बी सेफ एट होम, and do not step out of the home, and be safe. Goodbye.